السلام علیکم میرے دنیا بھر کے دیش بھر کے مسلمان یاروں دوستوں ماں بہنوں بھائیوں. دنیا میں ہر کوئی انسان، ہر ایک انسان عزت سمان پانا چاہتے ہیں، سفل ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں. سماج میں اس کی عزت ہو، سماج میں اس کو لوگ سمان سے پکارے، یہی چاہتے ہیں ہر ایک انسان. یہ تو بات بالکل صحیح ہے، ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن چاہنا اور پانا، مانگنا اور مل جانا، ان دونوں چیزوں میں بہت انتر ہوتی ہے. سارے عزت اور ذلت، سمان اور سفلتا، سارے کچھ، سارے طاقت، ساری نعمت دولت اس رب کے ہاتھ میں ہے. وہ ہر مخلوق کو بنایا ہے اور ہر مخلوق کو اپنا اپنا سسٹم سے بنایا، اور ہر مخلوق کے لیے ایک رولس بھی بنا کے دیا ہے اس رب نے. اور اس رب کی، اس بنانے والے کی جو سسٹم کو، رولس کو مان کر چلے گا، وہی سمان پائے گا، وہی سکسیسفل ہو پائے گا، وہی کامیاب ہوگا. اور جو شخص یا پھر جو بھی مخلوق اس رب کی، اس بنانے والے کی نافرمانی کر کے ان کی رولس کو توڑ کر زندگی گزار بسر کرے گا، وہ اسمان ہوگا، ناکام ہوگا. یہ بات بالکل فائنل ہے، یہی حق بات ہے. تو میرے دوست، تو ہم انسانوں کے لیے سفلتا، کامیابی، سمان، عزت، یہ سارے کہاں رکھا ہے، کس راستے پہ ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ. ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزر بسر کرنا. اپنے گھر میں، اپنے تجارت میں، یا پھر دفتر میں، یا پھر شادی بیاہ، کوئی بھی زندگی کی ہر شعبے پر اگر ہم سنت کو اختیار کریں گے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہر گھر کی کام، باہر کی کام کریں گے، تو ہمیں سمان ملے گا، عزت ملے گا، کامیاب ملے گا، سکھ ملے گا، چین ملے گا اور سفلتا ملے گا. یہی حق ہے. تو میرے دوست، ایک ہوتا ہے ریاکاری کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے. جو ریاکاری کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے سماج میں جو ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ تھوڑی بہت نیک عمل کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم جلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. لیکن جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنی خیر، اپنی سمان کے لیے، اپنی خیر کے لیے جو اللہ کی حکم کو، احکام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اس کو سمان ملتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن ایسے لوگ سماج میں بہت کم ہے، پر ہے. تو میرے دوست، ہم ایک پھیری کرنے والے ہیں، آس پاس پھیری کرتے ہیں، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ چل کے اپنے گھر سے. تو ہم جو آئٹم بیچتے ہیں، جو چیز سامان بیچتے ہیں، وہ جو ہے مسلمان فیملی کی آئٹم ہے. تو مسلمان بستی میں ہی ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. تو ہم ہندو کی بستیوں سے ہو کر آنا جانا ہمارا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرے دوست، ہم اس بات پہ اہنکار نہیں کرتے. یہ بالکل حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، یہ اللہ کا شکر ہے ہماری. ہم اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ
عزت सम्मान देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अगर हम कोई काम, कोई नेक अमल अगर अल्लाह के लिए करते हैं, जैसे हम इसी सूरत में कारोबार करते हैं, जैसे आप देख रहे हो हमें, ऐसे ही शक्ल सूरत में इसी लिबास में हम कारोबार में निकलते हैं। तो हम हिंदू की बस्तियों के ऊपर से आना जाना हमारा होता रहता है। हम हिंदू की बस्तियों में कभी कभी कुछ देर के लिए खड़े हो जाते हैं, चाय के दुकान में चाय वगैरह पी लेते हैं, हिंदू भाइयों से बातचीत हमारा होता है। तो हमने देखा है, हमने इस बात पर गौर फिक्र किया है, ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये जो सुन्नत है ना, ये हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहचान है कि हम उम्मत मोहम्मदी है। हाँ, हम में बहुत कमी हो सकता है, बहुत कमी है, बहुत त्रुटि है, हम गुनहगार भी है, खतागार भी है, जाहिल भी है और जालिम भी है, पर हर चीज़ की हद होती है। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की शुक्रगुजार है कि हम हद के दायरे में है। गुनाह हमसे हो जाती है जाने अनजाने में, लेकिन हम अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद भी रखते हैं और इस्तग़फ़ार भी करते हैं। तो मेरे दोस्त, हम हिंदुओं की बस्तियों से गुजरते हैं, आते जाते हैं, और मुसलमान बस्ती में हम कारोबार करते हैं, सामान बेचते हैं, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सम्मान मिलती है। लेकिन सम्मान मिलने का चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ है। और दिल का साफ़ होना, दिल का साफ़ होने का क्या मतलब है? दिल साफ़ है, इससे क्या मुराद है? दिल साफ़ किसी का अगर होता है तो उसकी चेहरा भी गवाह देती है, उसका बोलना, उसका चलना, उसका नज़र देखना, ये सारे चीज़ दिल साफ़ होने का गवाही देते हैं। हमारे अंदर ईमान है, हम अल्लाह के ग़ुलाम है, हम अल्लाह की हुक्म मानने वाले में से है, हम अल्लाह की फरमाबरदारी करना चाहते हैं, हम अल्लाह को राज़ी खुशी करना चाहते हैं। ये ख़याल ब्रेन में और ये जज्बा दिल में, ये चाहत दिल में, इसका पहचान ये है कि हमारा चेहरा, हमारा काम, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा अखलाक, ये सारे चीज़ गवाही देता है कि हम अल्लाह से कितना ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसे है, बहुत ऐसे शकल सूरत लेके, ऐसे सुन्नत लेकर भी शराब पीते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जुआ खेलते हैं, जी लॉटरी का टिकट भी निकलते हैं और सारे गंदा काम भी करते हैं जी। अल्लाह के सामने सजदा नहीं करते। ऐसे बहुत बुरे गलत काम करते रहते हैं। और ऐसे कुछ लोगों के वजह से जो है इस्लाम पर उंगली उठाते हैं कुछ गैर कौम जो अल्लाह का दुश्मन है जी। तो मेरे दोस्त, हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ऐसे सूरत लेकर, ऐसे शक्ल सूरत लेकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने चेहरे में लेकर गलत काम ना करो, ठीक है। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको सही लगे, दिल चाहे तो इस्लाम को मान लो, अल्लाह की इताअत कर लो। अगर ना लगे, अगर आपको पसंद ही नहीं है इस्लाम की विधान, तो आप छोड़ दो, लेकिन इस्लाम से खिलवाड़ ना करो, सुन्नत से खिलवाड़ ना करो। सुन्नत को अपने चेहरे में सजा करके गलत काम ना करो। चोरी, जीना, शराब, जुआ और झूठ बोलना और भी बहुत सारे गंदा काम हमारे समाज में होते रहते हैं, हमारे मुसलमान समाज में। तो ये दुख की बात है, ये गम की बात है, ये गलत है। तो मेरे दोस्त, सम्मान मिलने का, सिर्फ सफल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पहचान है उसकी इताअत करना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की जो पहचान है, अलामत है, वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना बहुत अंतर होता है जी। जो गैर कौम लोग हैं, जो अल्लाह को नहीं पहचानते, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, वो भी अल्लाह को मानते हैं। अलग भला अलग नाम से जानते होंगे, मानते होंगे, लेकिन
बनाने वाली सृष्टि जगत का रब एक है, मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ये बड़े बड़े ट्रक में लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की मानना ऐसे लोग समाज में, दुनिया भर में बहुत कम है। हमारे मुसलमान समाज में बहुत कम है। अल्लाह की मानना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरे दुनिया आलम की आलमीन है, रहमतल लिल आलमीन है। ये हमारी हिंदू समाज में जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं ये भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि दुनिया में आखिरी पैगंबर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन जानना और मानना में अंतर है। ये मानते नहीं हैं, जानते हैं। तो हम मुसलमान इस तभी कहलाते हैं जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रास्ते पे हम चलते हैं, तभी हम उम्मत मोहम्मदी है, तभी हम मुस्लिमीन है जी। तो इस तरह मेरे दोस्तों, कुरान को मानना और कुरान की मानना, कुरान एक ऐसा किताब है जहाँ पर हर इंसान की इज्जत है, सम्मान है, सफलता है। इसीलिए कुरान को मानना, कुरान को मोहब्बत करना, अल्लाह का कलाम जानना और उस कलाम के मुताबिक अमल करना, यह है कुरान की मानना। तो मेरे दोस्त, सारा इज्जत, सम्मान, सफलता सिर्फ इस्लाम पर चलने में है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हिसाब से चलने में, इताअत करने में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजर बसर करने में, अमल करने में, अपने घर में, अपने तिजारत में, घर की बाहर की दुनिया में भी हो या घर की काम काज में, औरत के लिए, सब के लिए सफलता देती है ये सुन्नत। तो मेरे दोस्त, इस्लाम को मजाक ना समझो, इस्लाम से खिलवाड़ ना करो, सुन्नत से खिलवाड़ ना करो। अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो, गलत छोड़ दो, हक रास्ते पे आ जाओ। हम आप सब से यही अनुरोध करते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं, अपनी ज़िंदगी, कीमती ज़िंदगी को ज़ाया करके अपना नुकसान खुद अपने हाथों से ना करो दोस्तों। थोड़ी दिन की ज़िंदगी है, मुख्तसर ज़िंदगी है, पर लंबी ज़िंदगी की आगाज़ देता है। वहाँ हमें कामयाबी होना है या फिर नाकाम होना है। और कामयाबी के लिए इस्लाम का रास्ता अल्लाह ने हमें चुन के दिया है, और नाकामी के लिए शैतान का रास्ता। तो मेरे दोस्त, हमें बचना है शैतान के रास्ते से, बेदीनी से। हमें कामयाब होना है, अल्लाह के रास्ते में चलना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।